ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ طلب علم دین کا ایک بہترین ذریعہ ذہنی آزمائش بھی ہے۔ الحمدللہ ذہنی آزمائش کے سیزن 17 کے آڈیشن کا کاروان چلتے چلتے آج پہنچ چکا ہے منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ کے شہر سرلے کلاں میں۔ آج انشاءاللہ الکریم یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، آتی ہے یا منچ پر، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 ہو جائیں تیار سارے حاضرین و ناظرین، ہو جائیں تیار سارے حاضرین و ناظرین، ہو جائیں تیار سارے حاضرین و ناظرین، اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا، اب تو سیزن 17 آیا، ذہنی آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن ہے سرلے کلاں کا اور آپ کو پیپر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ٹوٹل آپ کے پاس 12 منٹ کا ٹائم ہوگا۔ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، بلدیت لکھنی ہے، عمر لکھنی ہے، فون نمبر لکھنا ہے، جس شہر سے آپ آڈیشن دینے کے لیے آئے ہیں اس شہر کا نام لکھنا ہے۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ اتاری، ماشاء اللہ، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ پھالیا سے، ضلع منڈی بہاولدین۔ ماشاء اللہ، تو اپنے ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ 17 ہو رہا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ جی مدنی چینل پہ دیکھا تھا تو شوق تھا تو اس لیے آگے۔ ماشاء اللہ، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ناظرہ پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا محمد عبداللہ اتاری بھائی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ تراب المدینہ، کہاں سے تشریف لائے؟ پھالیا سے۔ ماشاء اللہ، تو ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ 17 ہے، اس کے حوالے سے آپ کو کہاں سے پتہ چلا اور کیسے پتہ چلا، اور آپ یہاں پہ کیسے تشریف لائے؟ یہ ہمارے استاد محترم ہیں بدر بھائی، تو انہوں نے اسٹیٹس لگایا تو ان کے تھرو پتہ چلا، تو پھر میں نے ان سے نصاب منگایا تو پھر تیاری کی، تو اس حوالے سے ان کے تھرو ہی پتہ چلا۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن جاری ہے پنجاب کے شہر سرلے کلاں کا۔ ہمارا فرسٹ راؤنڈ ریٹن ایگزام اپنے اختتام کو پہنچا، پیپر کی چیکنگ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش نصیب اسلام بھائی اس میں پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ہمارے اگلے راؤنڈ
इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। आप भी हमारे साथ रहिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, सरले कला का ऑडिशन जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर की चेकिंग हो चुकी है। अब इंशाअल्लाहुल करीम उन खुश नसीब इस्लामी भाइयों के नाम अनाउंस किए जाएंगे जिन्होंने हमारे अगले राउंड इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। पहले इस्लामी भाई हैं हबीबुल्लाह वल्दियत मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद बिलाल वल्दियत तनवीर हुसैन, मोहम्मद बिलाल वल्दियत मोहम्मद हनीफ। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्मी खजाना हाथ आया। ज़हनी आज़माइश आया, सीज़न 17। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, आती है या मंच पर। जी अपना नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। हबीबुल्लाह वल्द मोहम्मद अशरफ, मंडी बावलदीन से। क्या करते हैं हबीबुल्लाह भाई? स्टडी जामियातुल मदीना सरले कलाम में। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। माशाल्लाह। हबीबुल्लाह किन का लक़ब था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चलें हबीबुल्लाह, ये बताएं तिलावत कुरान के वक्त रोना कैसा है? तिलावत कुरान के वक्त रोना मुस्तहब है। ये अल्लाह ताला के जलीलुल कदर बंदों का तरीका है। माशाल्लाह। तेरे फ़कीरों में शहरियार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फ़कीरों में शहरियार हम भी। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल है। मैं जामियातुल मदीना में स्टडी कर रहा हूँ और गांव में रासना वाला ज़िला मंडी बावलदीन है। माशाल्लाह। कौन से जामियातुल मदीना में स्टडी कर रहे हैं? जामियातुल मदीना सरले कलाम। तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। अगर हुजूर सर पे रख दे नालैन पाक तो फिर कहेंगे ताजदार हम भी। ये तो बात तो आपने समझा दी, लेकिन असल शेर तो उसी तरह होता है ना, जो सर पे रखने को, जो सर पे रखेंगे नालैन पाक हुजूर तो फिर जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर। नाम बताएंगे, अपना मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मोहम्मद बिलाल अत्तारी। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइए मर्द का औरत का लिबास पहनने और औरत का मर्द का लिबास पहनने से मुताल्लिक हदीस मुबारक में क्या आया? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस मर्द पर लानत है जो औरत का लिबास पहने और उस औरत पर लानत है जो मर्द का लिबास पहने। तो प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना था, रज़ा जो दिल को बनाना था जलवागाहे हबीब, तो प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना था। मोहम्मद बिलाल तारी। वल्दियत मोहम्मद शकील चौध। रूह कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना कि यूं, कसरे दना के ऐब में, कसरे दना के, कसरे दना के राज में, अकलें तो गुम हैं, अकलें तो गुम है जैसी हैं। रूह कुदस से पूछिए तुमने भी कुछ सुना कि यूं, कैफ के पर जहाँ जले कोई बताए क्या कि यूं, आसमां के पूछते क्या हो, पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए कि मुस्तफ़ा के यूं कैफ के पर जहाँ जले वो। माशाल्लाह। अगले स्लाइड में जाजिब मुश्ताक वल्दियत मुश्ताक अहमद, मोहम्मद गौस रज़ा वल्दियत मोहम्मद अबू बकर। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। अच्छा माशाल्लाह। कोई 5 अराकीन शुरा के नाम बताएं। हाजी अब्दुल हबीब अतारी, हाजी अज़हर अतारी, हाजी अमीन अतारी, हाजी याफूर अतारी, हाजी अतर अतारी। माशाल्लाह। कोई मदनी चैनल के 5 प्रोग्राम के नाम बताएं। मदनी मुज़ाकरा, बच्चों का मदनी चैनल, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, ख्वाबों की ताबीरें। बच्चों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल, जवानों का मदनी चैनल, 3 तो ये हो। उर्दू मदनी चैनल, इंग्लिश मदनी चैनल, मंगला मदनी चैनल। एक प्रोग्राम में तो आप आए भी हुए हैं अभी, ज़हनी आज़माइश मदनी चैनल, जो कहनात। कसम की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? कसम की 3 किस्में। पूछ रहे बता रहे हैं? 3 किस्में हैं, बता जी जी बता रहे हैं। अब माइक में कॉन्फिडेंस के साथ बताएं। कॉन्फिडेंस से बोले, अभी तो अपने शहर में ही है, कराची भी जाना है अभी तो। कसम की 3 किस्में हैं।
قسم کی 3 قسمیں ہیں. یمین لغو یعنی غلط فہمی کی قسم. یہ وہ قسم ہے آدمی کسی واقعہ کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو. ایسی قسم پر کفارہ نہیں. یمین غموس یعنی جھوٹی قسم. کسی گزشتہ یعنی پاسٹ کے واقعہ کے متعلق جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا یہ حرام ہے. یمین منعقدہ جو کسی آئندہ کے معاملہ پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے. کسی صحیح معاملے پر کھائی گئی ایسی قسم توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے. قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. محمد جازی مشتاق محمد مشتاق سرلے کلاں. اچھا ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں جازی بھائی؟ پہلے تاجر تھا، ابھی فری ہوں. وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے، اس کے بارے میں حدیث مبارک میں کیا فضیلت آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تبارک و عرض کی کہ اے مالک مولا تیرا پسندیدہ بندہ کون ہے تیرے بندوں میں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ کہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف فرما دے وہ. کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا. میرے کریم گناہ ظاہر ہیں، زہر ہیں. میرے کریم گناہ ظاہر ہیں لیکن مگر آخر. جی نام بتائیں گے اپنا، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام محمد غوث رضا اتاری ہے. جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے اور جو شخص رک کر پڑھتا ہے، ان دونوں کے پڑھنے میں کیا فضیلت ہے؟ جو قرآن پاک پڑھنے میں ماہر ہے اس کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو رک کر پڑھتا ہے اس کو اس کے 2 اجر ملیں گے. ایک تو وہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا وہ رک کر پڑھ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہے یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول. اس کلام کا مطلب سنائیں. پہلا شعر عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. ماشاءاللہ. اگلے اسلامی کو دیجیے گا. نام بتائیں گے اپنا، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام عادل مختار اتاری ہے، رتوال منڈی باولدین سے. سچا اور امانت دار تاجر کن کے ساتھ ہوگا؟ سچا اور ایماندار تاجر صدیقین شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. وہ کریم ان کا خدا اور ان سے فزوں ہے. شروع کا آپ تھوڑا سارا وہ کریم ان کا خدا اور ان سے فزوں اور نہ کہنا. ہم کون؟ ہم کون ہیں؟ ہم مانگنے والے. ہم بہکاری وہ کریم ان کا بیکاری ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ. آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا. نام بتائیں گے اپنا، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام محمد واصف اتاری، والدیت محمد عمران ہے. میں جامعۃ المدینہ ملک وال میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں. اچھا یہ بتائیں واصف بھائی، اگر کوئی کسی کو جعلی نوٹ دے جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی کسی کو جعلی نوٹ دے جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے تک کی محدود رکھے، کسی آگے کو نہ دے، کہ کیونکہ وہ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ دوسرے کے ساتھ دھوکہ نہ کرے. جی اگر کوئی جعلی نوٹ دے جائے اور دینے والے کا پتہ نہ چلے تو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اور اگر دینے والے کا پتہ چل جائے تو اسے بھی وہ جعلی نوٹ واپس نہیں دینا چاہیے بلکہ پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. اب یہ نہیں کہ واپس کر دیں، کسی اور کو چلا دے گا تاکہ وہ کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے. کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. میرا نام محمد اللہ احمد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ گوجرا منڈی باودین میں پڑھتا ہوں. مانا ہے سن کے شک کے ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. کمال کا شعر ہے. دل کو دے نور و داغ عشق پھر میں فدا دو نیم کل. ماشاءاللہ. اگلے اسلامی کو دی.
मोहम्मद फैसल नवाज अत्तारी वल मोहम्मद नवाज। काबा मुअज़्ज़मा की कोई 4 खुसूसियात बयान करें। इसका हज फ़र्ज़ किया गया। हज हमेशा सिर्फ इसी का हुआ, बैतुल मक़दस का किबला ज़रूर रहा है लेकिन कभी इसका हज ना हुआ। इसे अमन का मकाम करार दिया। इसमें बहुत सी निशानियाँ रखी गई जिनमें एक मकाम इब्राहीम है। माशा, कोई तो शहीद शफाअत चशीदा होना था। मेरे करीम गुनाह ज़हर हैं मगर आखिर कोई तो शहीद शफाअत चशीदा होना। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं जामियातुल मदीना मियां वाली के 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप ये बताएं कि किसी ताजिर को अपने माल की तारीफ किस कदर करनी चाहिए? अपने माल की हद से ज़्यादा तारीफ ना की जाए क्योंकि ये झूठ और फरेब होगा। और अगर ख़रीदार को उस माल की सिफात से वो पहले ही आगाह हो तो उसकी जायज़ और सही तारीफ भी ना की जाए क्योंकि ये फजूल है। ये बताएं कुरान पाक की 4 शानें। कुरान पाक मुकम्मल है, इसका कोई पहलू ना तमाम नहीं। कुरान पाक में जो कुछ बयान किया गया वो हक़ और सच पर मबनी है। जो शरई अहकाम बयान किए गए वो हर लिहाज से अदल व इंसाफ पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की 5 सूरतों के नाम। सूरतुल निसा, सूरतुल मरियम, सूरतुल बकरा, सूरतुल इखलास, सूरतुल कौसर। माशाअल्लाह। चलिए ये आप बता दें तिलावत कुरान के वक्त रोना कैसा है? तिलावत कुरान के वक्त रोना मुस्तहब है और ये अल्लाह ताला के जलीलुल कदर बंदों का तरीका है कि वो बुलंद मरातब पर होने के बावजूद भी उनकी दिली कैफियत ये होती है कि जब उनके सामने कलाम आयात पढ़ी जाती है तो वो उन अल्लाह ताला के खौफ की वजह से रोने लगते हैं। माशाअल्लाह। हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कह दो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह। चहक के महक में फूल की गिरने लगी सबा के यूं। हाय रे धोखे बेखुदी दिल जो सबलने सा लगा, छक के महक में फूल की गिरने लगी सबा के। कलाम का मतलब और मक्ता सुना दे। पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पुर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। जो कहे शेरों पासे शेरे दोनों का हुस्न क्यों कराए, लाओ से पेशे जलवा जमजमा रज़ा के। माशाअल्लाह। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया। मेरा नाम मोहम्मद अली हमज़ा है। मैं जामियातुल मदीना मलकवाल में 2nd ईयर में पढ़ रहा हूँ। चलिए भाई बताएं बद अखलाक और मुतकब्बिर शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बद अखलाक और मुतकब्बिर है अल्लाह तबारक व तआला उसके यानी क़यामत के दिन उसके माथे पर लिखा होगा कि अल्लाह ज़लील की रहमत से मायूस है। नहीं ये रिवायत को और है। वैसे ये हज़रत हुज़ैफ़ा से मरवी जो रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मैं तुम्हें अल्लाह पाक के बदतरीन बंदे के बारे में ना बताऊं? बद अखलाक और मुतकब्बिर है वो, यानी वो बद अखलाक और मुतकब्बिर है। अल्लाह के बंदों में से बदतरीन बंदा उसे कहा गया है। मेरे चल के नाजरीन, ये कितनी मज़मूम चीज़ें हैं बद अखलाकी और तकब्बुर। अल्लाह पाक इन गंदी चीज़ों से हमें महफूज रखे। तो प्यार कैद खुदी से रहीदा होना था। रज़ा जो दिल को बनाना था जलवा गाए हबीब, तो प्यार कैद खुदी से रहीदा होना था। अगले इस्लाम को दीजिएगा। मोहम्मद तैयब अली अत्तारी मोहम्मद बावदीन से। आप इरशाद फरमाएं कि जिसने किसी जालिम की उसके जुल्म पर मदद की उसके बारे में हदीस मुबारक में क्या वईद आई? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी जालिम की उसके जुल्म पर मदद की, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसके माथे पर लिखा होगा कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। कुदरत के बावजूद अल्लाह के लिए आला लिबास तर्क करने की क्या फजीलत है? हज़रत अनस जुहनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने कुदरत के बावजूद अल्लाह के लिए आला लिबास तर्क कर दिया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे लोगों के सामने बुला कर फरमाएगा कि ईमान का जो हुल्ला चाहे पहन ले। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अल्लाह जी तुराब बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। तुराबुल मदीना तारीफ हालिया से बताइए कि अल्लाह पाक की नेमत पर खुश होने का क्या हुक्म है? अल्लाह पाक की नेमत पर खुश होने का हुक्म यह है, याद रहे कि अल्लाह पाक की नेमत पर खुश होना अगर फ़ख्र, तकब्बुर और शेखी के तौर पर हो तो बुरा है और कुफार का तरीका है, और अगर शुक्र के तौर पर हो तो बेहतर है और सालिहीन का तरीका बल्कि हुक्म इलाही है। पड़े हुए तो सरे राह गुजार हम भी हैं, इधर भी तो सने अक़दस के 2 कदम जलवे, पड़े हुए तो सरे राह गुजार हम भी हैं। आपका जवाब बिल्कुल गलत है।
पड़े हुए तो सरे राह गुजार हम भी हैं। तुम्हारी एक निगाह करम में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरे राह गुजार हम भी हैं। माशाअल्लाह। अगले स्लाइड को दीजिएगा जी। नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मोहम्मद तैयब जफर, जामिअतुल मदीना लिया से 33 साल का तालिब इल्म। तो ये भाई बताएं, क्या क़यामत के इन जानवरों का भी हिसाब होगा? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तुम लोग ज़रूर हक़दारों के हुकूक उनके सुपुर्द करोगे, हत्ता कि बेसींग बकरी को सींग वाली बकरी से बदला लिया जाएगा। कुफ्र और गुनाहों के बावजूद दुनियावी खुशहाली का असली सबब क्या है? कुफ्र और गुनाहों के बावजूद दुनियावी राहतें मिलना ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से डील है और उसका गज़ब व अज़ाब है कि इससे इंसान और ज़्यादा गाफिल हो जाता है और गुनाहों पर दिलेर हो जाता है और कभी ये गुमान करता है कि गुनाह अच्छी चीज़ है वरना मुझे ये नेमतें ना मिलती, और ये कुफ्र है। वो कौन सा अमल है जो इंसान के लिए बरकत और पाकीज़गी का बायस है? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हलाल माल कमाया फिर उसे खुद खाया और उससे लिबास पहना और अल्लाह ताला के दीगर मखलूक यानी अपने अहल अयाल और दीगर लोगों को खिलाया और पहनाया तो उसका ये अमल उसके लिए बरकत और पाकीज़गी है। सुभान माशाअल्लाह। तो मेरी जान शरारे जहीदा होना था, जो संगे दर पे जे बेसायों में था मिटना, तो मेरी जान शरारे जहीदा होना था। मेरी उम्मीद तुझे आरमीदा होना था, हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी, मेरी उम्मीद तुझे आरमीदा होना था। न सबर दिल को गजाले रमीदा होना था, पनाहे दामने दश्त हरम में चैन आता, न सबर दिल को गजाले रमीदा होना था। अगले स्लाइड को दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद असद रज़ा तारी है, मेरा ताल्लुक समुंदरी फैसलाबाद से है। चले जी असद भाई बताइए कि हदीस मुबारक के तहत वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनको 5 से पहले गनीमत जानने का इरशाद फरमाया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, फुर्सत को गफलत से पहले, मसरूफियत को फ़रागत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, वक़्त फुर्सत को गफलत से पहले। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तकरीबन, लेकिन ये कि 5 चीज़ों को 5 से पहले गनीमत जानो। इस हदीस में फरमाया अपने बुढ़ापे से पहले जवानी को, अपनी बीमारी से पहले सेहत को, अपनी मोहताजी से पहले मालदारी को, अपनी मसरूफियत से पहले फरागत को, अपनी मौत से पहले जिंदगी को। माशाअल्लाह। सलाम अबरुए शाह में खमीदा, हिलाल कैसे न बनता कि माह कामिल को सलाम अबरुए शाह में खमीदा होना था। क्यों रो रहे हैं किबला? आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो। खौफ खुदा में रो रहे हैं, याद मदीना में रो रहे हैं, या इसके मदीना में रो रहे हैं, या वैसी कोई तकलीफ हो रही है? खुशी हो रही है कि ऑडिशन अच्छा गया है जी। अच्छा, सवाल आपके तकरीबन इनके ठीक गए ना जी? लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया, कईयों ने ठीक दिए हुए हैं। अब ये तो मुल्तान भी रह गए, यहाँ के फालिया में भी रह जाएं तो मुल्तान में भी टॉप 6 में आए थे शायद। चले इंशाल्लाह यहाँ भी कुछ ना कुछ टॉप में तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। दरवाजे के पास तो आ ही गए, दरवाजा खुल गया तो अंदर भी दाखिल हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। मदनी चैनल के मकबूल आम क्विज प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश सीजन 17 के लिए ऑडिशन आज मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट में सरले कलां में जारी है और ऑडिशन हो चुका है। अब अनाउंसमेंट का वक्त आ गया है। हमारे तलबा ने कोशिश की और ताजर भी थे, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह इस क्विज़ प्रोग्राम में शिरकत करते हैं, ऑडिशन में आते हैं। आज डिस्ट्रिक्ट मंडी में सरले कलां के ऑडिशन में जो 3 इस्लामी भाई सिलेक्ट हुए हैं, इनमें मोहम्मद तैयब ज़फ़र वल्द ज़फ़र इकबाल। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया। और दूसरे हैं मोहम्मद हसनैन वल्द मोहम्मद अफजल। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, ज़हनी खजाना हाथ लाया। और तीसरे इस्लामी भाई हैं तैयब अली वल्द इफ्तिखार अहमद। इतनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, आती है या मंच पर। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्मी खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17